joined with you guys, he's left basketball. And I share a very old bond, I would say. And he's when I was in 12th, he was in 9th. Right. So I was in the senior team, he was in the junior team. Right. And things started off from there. तो मतलब एक उसके बाद फिर ये वो बंदा है ना जिसने लाइफ में जो इसके मन में आया ना इसने वो करा है, ठीक है. He loves to do things his own way, right, and succeed in them, ठीक है. This is what he has done so far. And एक इसी बात से मैं मतलब इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि आफ्टर फिनिशिंग हिज क्लास 12th, ठीक है, सो ही वेंट इनटू एमिटी, राइट, बीटेक अलॉन्ग विद केशव एंड ये ना उन्हीं के साथ था ना. हाँ, बट ही अंडरस्टूड एक साल में कि मैं बीटेक इज़ नॉट हिज थिंग, है ना, बिकॉज बीइंग समवन हु कम्स फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, तो ही इज़ इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. स्कूल टाइम से ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है. तो इसको समझ में आया कि भाई बीटेक इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, बिकॉज द टाइम दैट आई रिक्वायर फॉर experiencing variety of things that I'm not getting, है ना. So he chose BSc Maths, ठीक है, from ARSD, है ना. Yeah. आत्माराम सनातन था, right, college DU, right. He represented the DU की basketball team. I think you also played inter-university, है ना. He played inter-university, North Zone, ठीक है, तो अच्छे level पे खेला है, right. Then he came into SSB preparation. इसने एनडीए में भी दिया था, ठीक है. एंड ही आई थिंक ही डेडिकेटेड 1 or 2 years towards SSB preparation. नहीं, I dedicated NDA and this CDS inclusive 1 year. 6 months each time. 6 months each, है ना. In that he understood कि भाई is it worth it, or I mean, you know, it's about return on investment kind of a thing, right. So he understood, and that is the best part, trust me, because life, SSB is a reflection of life, ठीक है. And if people go into the SSB without sorting their life, this is something that, like, you know, then their desperation is shown. Desperation and your activity is made as shown. And this is what I like to call the definition of insanity is doing the same things again and again and expecting different results, ठीक है. So if you want to change things, then you also have to change the approach, right. That is what he understood. And today I want to talk about what is the definition of unemployment, right. So unemployment is when, according to the government, when any person is in the working age population, that is 15 to 60, ठीक है. Number 2, he is actively seeking employment, and number 3, he is not able to get one, ठीक है. So unemployment rates in India are quite high, fine. So when you all come here, so yesterday, like, we were having a discussion, so I realized that a lot of you, or when students come to us, they're not clear in their life about what they are going to do, ठीक है. They are committed towards defense forces, but then the issue is that it is like chasing a girl who's playing hard to get, yeah, there's no end to it, fine. So what you have to understand is you want to build value in life, right. And when I see you guys, I realize that आप लोग ना ज़्यादा commit करके बैठे हो, ठीक है. And you guys are not thinking beyond this, right. What I want you guys to do is don't get misdirected, ठीक है. But in life you can divide your life into 2 parts, ठीक है. One is dedicated towards SSB preparation, and trust me, it doesn't take, I mean, if it was IAS तो 12-14 घंटे भी कम पड़ता है, but SSB defense forces is not that, we know that, right. And keep second part of your life dedicated towards skill, ठीक है. Learn a skill, give 6 months, 1 year, ठीक है. And under that I want to share his experience, fine. Let me resume the journey. And then he went into he did a course for data science, ठीक है. Started off small, right. Details विभव बताएगा. He started off small and today he is doing really well, ठीक है. Details and numbers बाकी विभव से पूछना,
ठीक है, I'm not sure. I'll be candid about the numbers and you know everything that Bhaiya has just said. But before I ask all of that, matlab, does any one of you have like a backup goal if Fauj does not happen? What is your backup? You are already interning somewhere, Yes, na? yes. Okay, and what My is your backup goal is same, along the same line. software engineer? Yes, becoming a software engineer. What is your time commitment abhi to the internship? Abhi, I have taken some days off, some work from homes during the internship. And currently Internship कहाँ से based है? Delhi based. दिल्ली based है? Okay. हाँ. तो currently I give my like सुबह 1 घंटे पहले दे देता हूँ, फिर शाम में जब यहाँ से फ्री हुआ 5 o'clock के बाद तो फिर वहाँ पे 3-4 hours मैनेज कर लेता हूँ. तो काम तो हो ही जाता है उतने में मेरे इंटर्नशिप का. अभी भी लॉक्ड इन आई थिंक. हाँ, अभी मैं ऑनलाइन ही हूँ यहाँ पे. Good. ऐसा. Good. तो इट्स लाइक कि if not SSB and if not defense, then I will move on to becoming software engineer. Okay. हाँ. आपका नाम फिर से बताना. सुशांत. Sushant. Okay. Good job. So I'll give you a brief about my background पहले एक बारी along with what Bhaiya said in addition to all of that. So I come from a fully Fauji background. Like मेरे नाना, दादा, uncle, chacha, fufa, anyone you take was in the armed forces in some shape or form. So my father is in the Air Force. He's at a very senior position right now, and I've been grown up in that environment only. So until 12th class, I thought this is what I'm destined for. But probably till 11th के end में is what I thought this is what I'm destined for. Go ahead with this because from the very beginning I was involved in co-curriculars. I was pushed for all of that. कभी debates कर लेता था, कभी prefects वाले काम कर लेता था, कभी sports में रहता था. And I've played nationals throughout my schools. So I've played nationals in 3 sports: badminton, cricket, and basketball. And मैं सब में मतलब I was enjoying my time and biding through time. Then 12th आया तो suddenly your parents want you to focus on studies now only. तो वो बिकॉज 12th के नंबर पूछने वाले, तुम्हें यहाँ पूछने वाले, कोई नहीं पूछता. रिश्तेदार. नोबडी आस्क्स यू इवन अंडरग्रेड वाला स्कोर. ठीक है, 12th में जब मैंने वो रियलाइज करा, आई नेवर फोकस्ड ऑन माय अंडरग्रेड आफ्टर दैट, ऑन माय एजुकेशन ड्यूरिंग अंडरग्रेड, बिकॉज आई वाज डूइंग मैथ्स ऑनर्स. आई डिडंट वांट टू बिकम अ प्रोफेसर. तो until unless I want to become a professor, you don't have to really focus on the theoretical part. What is life skill that you obviously have to develop by yourself. Then everyone in my family never went to the college. Nobody in my family went to the college. So I was like, मैं college जाऊँगा, खुद सीखूँगा, कुछ तो डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ ढूंढ के आता है, देखते क्या है, बाहर क्या है. So I went into college. I went into the organizational team जो होती है ना, आपके फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें चला गया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में. सेकेंड सेमेस्टर में डिबेट टीम में चला गया, स्टेड इन द डिबेट टीम टू अबाउट 3 years. देन बास्केटबॉल में था ही मैं शुरू से हमेशा से. I was very very focused. Classes, attendance कुछ नहीं, did not care about all of that. I wanted to focus on growing myself as an individual. So 3 years went by in a jiffy, पता भी नहीं चला. And then third year में आते आते करना क्या है? Do you want to really go for the Fauj or not? That is when CDS and AFCAT came into the picture. I said CDS करना है because पता नहीं क्यों for some reason I thought AFCAT is only short service. It is not the case. बट उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ था तो CDS करेंगे, CDS प्रिपेयर करते हैं. 6 महीने करा मैंने प्रिपेयर. एंड मेरा रिटर्न जो क्लियर हो सकता था या नहीं हो सकता था आज भी नहीं पता मेरे को. सो व्हाट हैपेंड वाज 6 months मैंने एफर्ट लगाया एंड आई वाज टू दैट पॉइंट वेयर आई ऑलवेज यूज्ड टू लूज आउट इन जीके. एंड आई केम टू दैट पॉइंट वेयर मैं जीके में 25-30 क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूँ. अब 3 दिन एग्जाम से पहले आ जाए कि यार ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है. Went in the paper, wrote the paper, नहीं हुआ. I was like, ठीक है, probably sign. Even if it's not a sign, I lost my interest then. I said, what do you do now? I have to find a way to do something or the other because I've got a lot of co-curricular activity that I've been doing. So I got a lot of people that I met because of that. कुछ ना कुछ करता रहा मैं. कहीं स्पोर्ट्स के थ्रू लोग दोस्त बना लिए, कहीं डिबेट्स के थ्रू दोस्त बना लिए. शिवनाथ यूनिवर्सिटी में जाके 3 दिन हॉस्टल में रुक के आ गया. Just to gauge कि what are people doing there. वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए तो उनके साथ 3 दिन रुक के आ गया. आई स्टेड इन दी आर्म फोर्सेज हॉस्टल फॉर अ गुड 2 year period. वहाँ पे भी नए नए लोग आए, पीपल यूज्ड टू कम एंड गो. आई वाज स्टिल देयर फॉर अ व्हाइल. तो गेन मोर एक्सपीरियंस विद इंटरैक्टिंग विद मोर इंडिविजुअल्स. एंड देन आई केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस. बट 2018 के आसपास ना डेटा साइंस वाज नॉट इन बूम और एनीथिंग. अभी जो इंजीनियरिंग वाला हाल है वो डेटा साइंस वाला हाल है.
उस टाइम पे नहीं था वो, तो उस टाइम पे मैंने केम अक्रॉस इट, देयर वर वेरी फ्यू स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दैट वुड ऑफर ऑल ऑफ दैट, सो आई फाउंडेड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव. नाम बताया. I absolutely forgot the name of that, and I will not recommend going there because वो बंद हो चुके हैं अब. I'll give you better areas to study from. But basically, I found what I was interested in doing, and I tried to learn it for 3 months. Then COVID hit. अच्छे से couldn't go there anymore. So when that happened, I couldn't go there. I couldn't complete my course. वो सब offline था. Because मुझे पता था कि अगर कोई online training होगी, मैं अपने हॉस्टल में सो जाऊँगा कैमरा ऑन करके. मतलब सॉरी वीडियो ऑन करके. आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, सो आई पुट दैट प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि तुम जाओ और अटेंड करो. वो हिकअप आ गया बीच में. दैट इज़ व्हेन अगेन माई पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग कि भाई तू फौज कर ले. अब somebody who's been in the फौजी environment will only suggest फौज ना, उनको इसके बाहर का नहीं पता ज़्यादा. बट आपके पास प्राइवेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड. आप लोगों ने अमेजोन यूज़ करवाएगा ना सबने. हैव यू सीन दैट फीचर कॉल्ड सेव फॉर लेटर? आप कार्ट में जाके कुछ ऐड करते हो एंड देयर इज अ सेव फॉर लेटर बटन. दैट सेव, हाँ, तो सेव फॉर लेटर बटन जो है वो भी किसी ने सोचा होगा ना, बिकॉज इट वाज नेवर देयर पहले. दिस इज अ पर्टिकुलर जॉब फॉर एन इंडिविजुअल. देयर आर जॉब्स कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजर्स. दे डू दिस. वो डिजाइन करते हैं कि यूजर या कस्टमर की जर्नी कैसे होनी चाहिए ऐप पे या प्लेटफॉर्म पे. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हैं. बट आई सेड आई फाइंड आउट क्या क्या जॉब्स है बाहर, किस में इंटरेस्ट आ रहा है, करके देखते हैं. 3 महीने का कोर्स करा, समझ में नहीं आया कि इंटरेस्ट आया या नहीं आया. फिर कोविड हिट हो गया. आई वाज स्टेइंग विद माय पेरेंट्स एट दैट टाइम. हम घर पे बैठे बैठे करोगे क्या? तो आई टुक अप अ कोर्स इन अपग्रेड. That is where I did my data science from, an MSc and PG diploma in data science. So the PG diploma was from IIIT Bangalore. The MSc was from a foreign university called Liverpool John Moores University. It's in UK. तो वहाँ से मैंने वो कोर्स शुरू करा. 3 months later I got very interested in the course. I was like, ये तो मज़ा आ रहा है करने में. 3 months के बाद में I went ahead of the course. 6 months के अंदर I bagged a job. I've been in the same organization since. 2021 April में I got my job. उसके बाद से I've been in the same organization, about to complete 5 years in April this year. Now, during all this period, when I was preparing for civil service or for my this NDA and, or anything of that for that matter, I was not stuck at one thing, never, because मुझे पता है कि even if I know everything ना, I'm still missing out on something. कुछ तो होएगा ऐसा which might interest me more than this. ठीक है? You cannot put your eggs in one basket and hope कि हो जाएगा. Because अगर आप hope पे जी रहे हो तो कुछ certainty आपको guaranteed नहीं मिलने वाली. ठीक है. Hope is a good thing to look up to when there are times of crisis. But except that, उसके अलावा फिर क्या होता है ना, इंसान hope पे नहीं, इंसान को will पे रहना चाहिए, है ना. That I will create my own future. ठीक है. पाथ पे आपको चार्ट करना ज़रूरी है लाइफ में कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स ये है, मेरे मिड टर्म गोल्स ये है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ये है. व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम लाइफ इज़ द बिगर क्वेश्चन. इफ़ यू वांट टू गो इनटू द फोर्सेस बिकॉज यूनिफॉर्म मिलती है, स्टार्स मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, तो वो तो गलत है. दैट कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर यू टू गो इनटू द फौज. व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू द फौज इज समथिंग दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. व्हेन आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट सेम क्वेश्चन, आई डिड नॉट गेट एन आंसर. When I did not get that answer is the reason why I decided maybe this is not what you want. And then over the years I have confirmed that belief in life. Ki this is not what I wanted. Me and my younger brother are both in the civil. And I'm at that position, I'm 27 years old by the way, so I'm at that position in life where I'm thinking about opening my own stuff. My younger brother has his own organization. So there is a lot of things that you can do outside of this as well. What I'm trying to say is that एक बैकअप ऑप्शन रखना ज़रूरी है लाइफ में. बिकॉज एक तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आर नेवर गारंटीड. यू कैन नेवर से दैट इफ आई पुट इन दिस मच एफर्ट आई विल डेफिनेटली गेट अ जॉब इन द गवर्नमेंट. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. देयर माइट बी थिंग्स दैट यू विल नेवर इवन फिगर आउट कि ये हो सकता है मेरे साथ में. पीपल हैव बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ एल्बो अलाइनमेंट. People have been rejected because of, you know, आपके आई में आपको भी पता ही नहीं चला कि there were black spots in your eye. You will never figure out all of these things until unless you go for the medicals.
because you know that they are looking at you with a even bigger lens than you would ever go outside and see. ठीक है, तो वो जब होता है it's very heartbreaking at that time. I know a few friends of mine जो SSB में जाने के बाद में, भैया is also an example, but जो SSB में अपना attempt क्लियर वेयर करने के बाद में एक मेडिकल इशू की वजह से, बिकॉज नाउ दे नो कि वो पायलट नहीं बन सकते, तो दे डिड नॉट गो इनटू द फौज, एंड नाउ दे आर आउटसाइड ऑफ इंडिया. राणे इज वन एग्जांपल, अक्षय देवरानी इज वन एग्जांपल. अच्छा, देवरानी का भी सेम था. देवरानी तो खैर अच्छा बच्चा है. हाँ, बट मतलब देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें करने हो. अब अगर आपको गवर्नमेंट के साथ में ही काम करना है तो देयर आर पॉलिसी मेकिंग जॉब्स आल्सो. अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. यू वर्क डायरेक्टली विद द मिनिस्ट्री ओनली. आप मिनिस्ट्री को रिकमेंड करते हो कि इंडिया को बेटर कैसे करना है. अगर आपका गोल ही वो है कि आपको इंडिया को बेटर करना है, तो यू मेक दोज पॉलिसीज, यू सजेस्ट दोज पॉलिसीज, यू पुट इन दैट एफर्ट. एंड मतलब what I remember as a kid when I was, you know, idolizing the फौज कि मुझे फौज में जाना है, was it's a good life, it's enjoyable life. फौज is not enjoyable. The first few years is going to be horrible for everyone. And it is the same in corporate also. Politics is a part of life. Politics is not a part of फौज. Politics is part of life. किसी भी organization में चले जाओ, you will have politics. Any organization for that matter. You will always have politics. ठीक है, you open your own startup, you will have 5 people under you, वो 5 लोगों में politics हो जाए. And this is a real life example. I'm telling you, I had a friend who has his own startup, उसमें भी ये हो रखा है. अब you would think as an outsider कि भाई तुम एक CEO है और 5 लोग हैं, तुम 5 employees, इसमें क्या politics हो रही है? But उसमें भी groups बन जाए, politics हो रही है. Anything in life you do, you have to be hungry to achieve more. वो फौज है या कुछ भी है, फौज में आप शुरू में जाओगे ना, you'll be handling the canteens. You'll actually be handling the canteens कि कैंटीन में क्या सामान आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. आप ये सोचोगे अंदर जाने के बाद में कि क्या आ गया भाई, मैं लड़ने को तो मिला नहीं, कुछ करने को तो मिला नहीं रहा असली. आपको जो यंग ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या सबसे मेन काम क्या होता है पता है? फ्लाइट कमांडर के अंदर. सो इन अ स्क्वाड्रन देयर इज अ सीओ के अंडर आता है फ्लाइट कमांडर, एंड देन फ्लाइट कमांडर के अंदर बाकी सारे जो भी लोग होते हैं. तो जो फ्लाइट कमांडर का काम हो रहा था वो टू इंश्योर कि सीओ की जो पार्टीज है उसमें लेडीज को ढंग से देखा जा रहा है कि नहीं देखा. इज दिस अ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर? नो, बट दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू टू अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. That responsibility that you're thinking कि हम we'll do good for the nation, it comes eventually. It doesn't come in the first go, and that is the same with everything in life. ठीक है. अब but you should at least know what you're getting into before you I mean, you know, दूल के ढोर सुहावने वाला वो नहीं होना चाहिए कि मतलब दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, राइट. एंड हॉबीज होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में. जैसे मेरे को, मैं अभी बता रहा था ना आपको कि मुझे अगर जब तक कोई गेम में कुछ फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, वो मैंने अपने रियल लाइफ में भी ढूंढ लिया यार. मैं डिबेट करने लग गया, मुंह से लड़ाई कर ली मैंने, बातों में लड़ाई कर ली मैंने. मतलब आई एंजॉय डूइंग दैट. You have to find something or the other to do that you do so that it, you know, elevates your mood, keeps you happy, keeps you focused in life. Yes. भैया के बाद तुम यहाँ पे अगर सुबह 7-8 घंटे कर रहे हो स्पेंड, तो उसके बाद कुछ तो होना चाहिए ना कि आपको लगे कि हाँ भाई 8 hours तो मैंने फुल जान मारी, अब 1 hour I'm going to give to myself to do something that I love, whether it be reading books, whether it be playing computer games. But after the 1 hour I'm rejuvenated to put in the effort so that tomorrow when I go into the class I'm more prepared. So today whatever I am, tomorrow I'm better than today. ये सब चीज़ें are very important in life in general. Having a backup is necessary because, see, first of all, I think the biggest factor is desperation. It should not be visible in your SSBs. आपके जो 1 minute 2 minute जो extempos होते हैं, उसके अंदर to speak, you know, freely, you have to be A, confident, and B, you can't show any sort of desperation there. Because there will be a lot of activities. अब सब लोग SSB जा चुके हो. There are group activities in your GTO. There are a lot of things to do. ठीक है. वहाँ पे एक तो
I think I can speak for the boys इसमें especially because there are a lot of activities जिसके अंदर आप पहली दोस्ती बना लेते हो. You're staying in dorms and all ना, पाँच दिन के लिए तो आप दोस्ती बना लेते हो. तो there's this task ना, इसमें you have to get 2 helpers. Command task, yeah. तो command task के अंदर when I had gone for I've only gone for 1 SSB in 10+2 भी Navy Tech वाला. उसमें मैं गया था, हमारे 10 लोग थे, 10 में से 8 लोगों ने मुझे बुला लिया था कमांड टास्क में हेल्प करने, क्योंकि दोस्ती बना ली वहाँ पे. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें जो है ना, यू हैव टू डू नेटवर्किंग इन ऑल ऑफ दिस, मेकिंग फ्रेंड्स, बिकॉज मेकिंग पीपल कनेक्शंस, दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट लाइफ. ये जो आप लोग में ही है ना यहाँ पे, सम ऑफ यू माइट गो टू द फौज, सम ऑफ यू माइट नॉट, बट जो फौज में जा रहे हो उनका फ़ायदा उठाओ इवेंचुअली, है ना. और जो नहीं जा रहे बाहर, अगर you ask them what is their experience in life. In general, have your goal. Don't put all of your eggs in one basket yet. ठीक है. When you come to that point, you'll know. Also, you need to know where to stop. You can't continuously keep giving the government exams. Don't jump from forge to civil services or assistant commandant directly. Everyone wants to do that. ठीक है. बट देन यू नीड टू नो कि भाई आई हैव गिवन माई सेल्फ 3 years में अगर मेरा फौज हुआ है या असिस्टेंट कमांडर हुआ या ये हुआ, फाइन. बट इसके बाद में आई नीड टू टेक अ होल्ड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी टू लेट. अदरवाइज वेयर आई ज्वाइन आई विल बी द ओल्डेस्ट फ्रेशर. ठीक है. तो हाँ, sorry to interrupt. you need to मतलब chart out plans for yourself, and I'm sure Bhaiya will review your plans. If you want Bhaiya to send it to me, I'll review your plans, ki if they make sense or not. But first of all is find something that interests. Something, anything for that matter. मतलब what interested me personally was, मैंने डेटा साइंस में was कि किसी ने मेरे को बोला कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करके कोई चीज़ होती है. मैंने ये क्या होता है, तो किसी ने मेरे को बोला, मैं ये क्या होता है. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि भाई मैं अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने मास्टर्स के टाइम पे, व्हेन आई वाज वर्किंग, दिस इज ऑल ड्यूरिंग वर्किंग, कि मैंने 2 महीने का एवरी 4 मिनट्स का बिटकॉइन का डेटा निकाला, एंड उसके बेसिस पे मैंने 1 मिनट का ग्राफ प्रेडिक्ट करा था. 1 मिनट तक की एक्यूरेसी पे 1 मिनट की एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करी थी मैंने, और उसमें मेरी एक्यूरेसी 65% आई थी, मुझे अभी भी याद है. क्रेजी. ठीक है. 1 मिनट की एक्यूरेसी. All of this was on used data only. मैं वेरीफाई भी ऐसे ही कर रहा था कि मेरा एक्यूरेसी कितनी अच्छी है या नहीं है. बट दैट इज व्हाट इंटरेस्टेड मी. बट अब तो अब you've got so many things around you. AI से लेके कुछ भी ले लो, आप ChatGPT ले लो. Just go and ask ChatGPT कि if I'm not able to make it to the forge, what else should I do? What can help India do better? What are other careers that I can pursue which will still help India and the government? Just ask ChatGPT. ChatGPT will give you good answers. अच्छा, एक वन मोर थिंग, जैसे अगर तूने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है विदाउट रिवीलिंग द क्लाइंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट जो तेरे वो इंटरेस्टिंग लगे हो, है ना, एंड व्हाट यू अचीव, हाउ डिड यू अचीव इट, वो अगर शेयर करना चाहे तो they'll get us some insight. Okay. So I think Sushant ना? Yes, sir. Sushant would be aware, business analyst की जॉब होती है ना? तो I started off as a business analyst in 2021. Initially मेरे को existing चीज़ों पे enhancements करने का दिया जाता था. Now I'm at that point where I lead a team of 8 people. तो I work in a insurance domain, and मैं specifically motor insurance की analytics में काम करता हूँ. So हमारे ना विद इन मोटर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आपकी कोई कार इंश्योरेंस वगैरह भी पड़ा होएगा तो उसमें क्या होता है कि रिकवरी सेटलमेंट्स होते हैं, देन देयर आर रिपेयर्स दैट आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, बट नन ऑफ द वर्टिकल्स विद इन मोटर स्पेस दे डोंट वर्क वन आफ्टर द अदर, दे वर्क साइमल्टेनियसली टुगेदर. कि अगर आपकी मतलब मैंने भैया की गाड़ी पे ठोका, ठीक है, तो भैया रिपेयर तो करवा ही रहे हैं ना, बट पैसे भी तो लेंगे ना मेरे से वापस. तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले रिपेयर कराएंगे फिर ही पैसे लेंगे, या पहले पैसे लेंगे फिर ही रिपेयर कराएंगे. वो तो चलेगी इंश्योरेंस में. मतलब पहले वो बनाने थे, पहले वेरीफाई करने थे, पर मतलब काम बहुत लंबा चल रहा था. और सॉरी, आपका नाम? हर्ष. आपका नाम? सुमित. हाँ, आपने क्या करा है? सीमेंस में PLM का वो है, सॉफ्टवेयर है, उस पे काम करा. प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट टीम सेंटर है ना, प्रोजेक्ट लर्निंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. ओके.
तो उसका सॉफ्टवेयर है। उसको सॉफ्टवेयर उनका खुद का टीम सेंटर उसका नाम। उसके ऊपर हमारा काम लास्ट का कोर्स को 1 ईयर मैंने उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग चली थी। पर जब प्लेसमेंट की बारी आई तो कॉलेज कह रही हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो वो बैक ऑफ कर गए। ओके ओके। तू बता रहा था वो हाँ प्रोजेक्ट का मैं 6 आपको man team, हाँ हाँ तो वो 6 लोगों की टीम थी, बट आई ऑल्सो वर्क थ्रू माई वेज फ्रॉम द बॉटम ओनली ना, तो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वर डूइंग, सो दैट इज़ वाई आई बिकम वन ऑफ द की मेंबर्स टू लीड देम। तो वो हमने वी डेवलप्ड अ वेब ऐप जिसमें हमने बहुत सारे फ्लोज बनाए हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू ऑल ऑफ दिस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पहले आप आइडिएट करते हो कि आप जो बनाना चाहते हो, इज दैट डज दैट हैव वैल्यू, सो यू हैव टू टेक इट टू द सीनियर स्टेक होल्डर्स, यू टेक इट टू देम एंड यू शो इट टू देम कि भाई ये क्या है, ऐसा ऐसा चीज़ें सोच रहे हैं, डज इट मेक सेंस टू यू, इफ येस व्हाट सॉर्ट ऑफ यूजर स्टोरीज वुड यू वांट अस टू अचीव। यूजर स्टोरीज आर एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग यू डू फॉर अ कस्टमर, you don't do it for your own self, you do it for a customer. How do you help the customer by doing this? You make this project 6 महीने 8 महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका कोई पॉइंट है कस्टमर को? You have to think from that lens हमेशा। तो when you think it from that lens, then you have to show to some people who are senior to you and take their approval, ये सब वो सब। Then you start mapping out what sort of timelines are you proposing, कि कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, how many people do you need, how many resources do you need। तो ऐसे करते there are a lot of management stuff that comes on, but what end of the day was my goal was कि हम we figure out where the processes are lacking, where we are losing money and where we are paying extra, तो overall एक revenue में change मिले, कुछ money save हो या कुछ money जो expenditure हो रहा है वो कम हो, कहीं savings होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो this was one project। इससे पहले there was a project where I work with a lot of vendors। तो वेंडर्स जो है वो आपके रिपेयर्स जो है वो सब कितना टाइम में कर रहे हैं, उस सबको ट्रैक करना, ऐसे मतलब देयर आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स, बट दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एटलीस्ट टू मी। तो अभी तुम लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट जब करने बैठते हो ना फिर मज़ा आता है बहुत करने में। बट आई डू बोथ कोडिंग एंड आई रीड, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली कोडिंग नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दैट, मैं पाइथन तक खुश हूँ। इनका मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा है आई थिंक, है ना? हाँ, Mathematical एवरीथिंग हैज models। टू आंसर्ड विद डेटा। आप हंचेस पे नहीं जी सकते और आप अपने इंट्यूशंस और गट पे नहीं जीत सकते। योर इंट्यूशन विल टेल यू समथिंग, बट देन यू हैव टू बैक इट अप विद डेटा एंड से दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी देयर एंड दिस इज व्हाई इट विल हेल्प योर बिजनेस ग्रो और इट विल हेल्प मिनिमाइज योर लॉसेस, थिंग्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल मतलब the curiosity needs to be to that point where you take ownership and you say कि I want to do this, do you think this makes sense? It cannot be that every time they come to you and say कि हाँ हमारे हिसाब से ये करना है तुम। Your curiosity in every aspect of your life has to be like this। जैसे I did a value hunt, we call value hunts, what a value hunt is basically कि you find out कि certain processes in the business are lacking, आप उन बिजनेस प्रोसेसेस को उठाओ और आप बोलो कि दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज लैकिंग। अब नाउ दैट इट इज लैकिंग, वी नो इट इज लैकिंग, आई कैन डू दिस टू इम्प्रूव दिस। मैं इसको लैक करने से बचा सकता हूँ, कैसे बचाऊंगा मैं, ऐसे ये तरीके। एनालिस्ट वाला रोल ना बेसिकली। हाँ, वो वैल्यू हंट मैं खुद ढूंढ के ला रहा था एट अ वेरी यंग एज, मतलब एट अ वेरी यंग रोल। तो मतलब आई न्यू आई हैड फ्री टाइम बिफोर आई वाज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, ट्रांजिशन होना था मेरा। तो मेरे को पता मेरे पास 1 महीना है, अभी 1 महीना चिल रहेगा, या तो मैं पार्टी कर सकता हूँ, खेल कूद सकता हूँ, वो तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ रिगार्डलेस, माइट एज विल स्पेंड सम टाइम इन डूइंग समथिंग मोर आल्सो। अब द अदर वेज मतलब टू पास योर टाइम इज अपस्किल इन समथिंग और द अदर। ऑल्सो लर्निंग कभी खत्म नहीं होने वाली है आप लोग। अभी फौज में जाके जितना पढ़ाई होती है ना, आई सी माई फादर वर्किंग, तो आई एम टेलिंग यू 100% आपको जितनी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या जितनी आपने अभी तक ज़िंदगी में करी है, उससे कई ज़्यादा ना आप हर महीने में ख़त्म करोगे, हर महीने। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग उसमें जाना। वो योर गोल शुड नॉट बी फौज में घुसना, योर गोल शुड बी कि मैं वहाँ जाके करूँगा क्या एंड हाउ विल आई इम्प्रूव द फौज और हाउ विल आई चेंज, हाउ विल आई मेक एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो इंडिया को ही दे रहा है ना तुम्हें इम्पैक्ट। यू वॉन्ट इंडिया टू इम्प्रूव ना, हाउ डू यू वॉन्ट इंडिया टू इम्प्रूव? वाई शुड आई केयर कि भाई सुशांत के जाने से होएगा या हर्ष के जाने से फौज में कोई फ़ायदा होने वाला है? सुशांत एंड हर्ष नीड टू थिंक, सुमित नीड्स टू थिंक, everyone needs to think about all of this.
सुमित का मैं बताता हूँ, सुमित का क्या सीन है ना, अभी आई वाज स्ट्रगलिंग विद हिम फॉर द पास्ट 1 वीक और सो, ठीक है, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ना कि मतलब हाँ मतलब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सो he'll have a pleasant smile, ठीक है, हाँ जी सर जी, ठीक है, ऐसे करके, बट देन द रियल सुमित इज नॉट कमिंग आउट, है ना। आप चाहे मैंने रगड़ा दिया इसको, ठीक है, बोल नहीं रहा तो अब चल तू रगड़ा ले, ठीक है, तब भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब है कहाँ सुमित, ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था, राइट। सो yesterday we had a somewhat of a breakthrough, ठीक है, so I understood that he also has had a core personality of sports, ठीक है, and what happened is I think he had some health complications and उसके बाद से he has been on the gain, ठीक है, he gained weight. Now what's happening nowadays is that since he is not able to, अब जैसे तू और मैं एथलीट हैं, ठीक है, we understand कि भाई मतलब हम एक जब मोटापा आता है ना मोटापा आता है तो हाउ इट इन्फ्लिक्ट्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। हाँ ऑफ कोर्स। सो दिस इज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू एज ऑफ नाउ, है ना, बिकॉज मेरे को और कोई इश्यूज नहीं लगे, कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, ठीक है, बीटेक करा है इसने, राइट, एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, तो मैं इसको वही बोल रहा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड जो तूने अभी बोला ना कि ये तूने एक्सपीरियंस करा है ना, तो तेरे को जॉब का भी एक्सपीरियंस, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट कंटिन्यूइंग और एटलीस्ट बीइंग इन टच विद इट टू सम एक्सटेंट, और आइदर यू नीड टू पुट अ टाइम लिमिट, ठीक है, क्योंकि एसएसबी प्रिपरेशन जो होती है ना, इट इज़ अ शॉर्ट अफेयर, राइट। सो वंस इट इज़ डन, then the issue is that one thing very good about that I would like to मतलब मैं दूसरों को भी ये बोलता हूँ कि prioritize his personality, ठीक है, he did not want to stay stagnant, right, wait too much for something to happen, right, instead he wanted to grab life by the balls and do whatever the fuck he wants, right। तो इसने वो रखा भाई अपना नॉट, क्योंकि होता क्या है ना, पर्सनालिटी स्टार्ट्स क्रीपिंग इनटू सेल्फ डाउट अदरवाइज। आपका डेली रूटीन क्या है सुमित? सर अभी जैसे कि अभी घर पे हूँ, अभी तो मैं बहुत लेट उठता हूँ, 11 बजे तक, रात को 2-3 बजे सोता हूँ। मतलब इतनी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और? कुछ नहीं सर, अभी तो थोड़ा बहुत सर नहीं, विभव। हाँ अभी घर पे जैसे मैं बीच में थोड़ा डेटा साइंस का थोड़ा लगा कि करने का, मैं डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड करा था, साइंस रीजनिंग, डेटा एनालिस्ट का थोड़ा बहुत, तो पाइथन का कोर्स करा, एसक्यूएल वगैरह हल्का करा, बेसिक टाइप, ताकि बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए किसी कंसल्टेंसी में छोटी इनकम, जैसे कि अपनी सत्वा कंसल्टेंसी है जो कि इम्पैक्ट रोल में है, तो उसके लिए मैं अभी अप्लाई करा था, तब इसका कोडिंग राउंड एक आया था मेरे पास, तब मैं दूंगा अपना चलो, उसके मैंने बैकअप में सोच रखा कि 6 महीने के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सर, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे अभी गैप को, गैप इतना लंबा ना हो जाए कि वापस कॉर्पोरेट में ना पाऊँ, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अभी जुलाई तक मैं पूरा ट्राई करूँगा, एसबी है मेरे 2-3, उसके अंदर दूंगा, जुलाई तक मेरे 2-3 एसबी हैं, उसके अंदर जितना एफर्ट डाल सकता डालूंगा, जुलाई के बाद में मैं अपना पूरा शिफ्ट कर जाऊँगा कॉर्पोरेट की तरफ, क्योंकि पंचकुला में है थोड़े बहुत, भले ही बॉन्ड है 1-2 साल के, पर उसमें कंटिन्यू करूँगा। ओके, और ये डेली रूटीन जो है ना, ये बहुत चीज़ें इम्पैक्ट कर जाता है। नीड टू हैव मतलब कुछ लिमिट होनी चाहिए कि रात को 2-3 बजे तक इंस्टाग्राम थोड़ी स्क्रॉल करना है। हाँ, तो मतलब जो भी कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो ना, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो ना उस टाइम में, तो वो चेंज करना ज़रूरी है लाइफ में, वरना अदरवाइज यू विल गेट यूज्ड टू बीइंग लेजी, एंड लेजीनेस बहुत चीज़ें बोर करे, वही हो रहा है, लेजीनेस बहुत चीज़ें मार देगी, बिकॉज ऐसे उनको फौज में ऐसे लोग चाहिए जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपना टाइम। आगे आप इंटरव्यू में जाओगे ना, जब वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे जब पूछेगा कुछ, उसने आपसे पूछा आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, तो यू कांट टेल देम कि सोच रहा हूँ, यू हैव टू हैव एन आंसर फॉर दैट, बिकॉज देन इट गोज टू शो कि ये बंदा अपने आप को सीरियसली ले रहा है, अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहा है, ही इज़ नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट फौज, क्योंकि फौज सबका नहीं होने वाला है। अगर फौज सबका होता सब बन जाते, बता रहा हूँ मैं जी। फौज तो मेरा भी नहीं हुआ, मैं तो ऑनेस्टली मानता हूँ कि मैं फौज नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है, बट मेरे को पता था कि उसके बाद में मैं कुछ अच्छा ही करूँगा, जिसमें क्योंकि जोश इतना था करने का कुछ ना कुछ, कि मतलब कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ एंजॉय करते हुए करना है, एंड देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग, ठीक है, एंड दे विल टेस्ट यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है ना, वो तुम्हारे जैसे 1000 हर महीने देख रहा होता है,
मे बी मोर। हम सबके जैसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब आप उसको बोल दोगे ना कि आप लिख दो कि कितने स्टूडेंट्स किस तरह के आते हैं, आपको वो बना के दे देगा कि वो आपको एक सिलेबस बना के दे सकते हैं, इसके बाहर के लोग नहीं आते। और आप सिलेबस कभी नहीं बना सकते कि फौज में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, SSB में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, या इवन इन NDA फॉर दैट मैटर क्या पूछ लिया जाएगा। बट ही कैन, वो आप लोग के पूरे प्रोफाइल्स बना सकता है, इतना वो स्किल्ड होता है आदमी, वो इतने टाइम से ये सब कर रहा है। तो यू कांट फूल हिम, यू हैव टू बिकम दैट इंडिविजुअल दैट ही वांट्स। आपको वो बनना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू शो कि हाँ भाई, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम लॉन्गिंग टू इम्प्रूव इन लाइफ। हमेशा वो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अदरवाइज, क्योंकि लेज़ी हो गया, अगर आप आफ्टरनून में 2 घंटा सो रहे हो, रात को 12-1-2 बजे सो रहे हो, और तो लेज़ी रह जाओगे ना फिर। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, everyone can be employed if you have a skill that needs employment. Find a skill that interests you, that will get you employed. If you are not skilled ना, jack of all और जो king of none वाली चीज़ होती है ना, it does not work in the initial stages of life. You have to become something before you become, the everything basically. तो आपको you have to have some selling point। जैसे मेरा था कि मेरे को डेटा साइंस आता है, डेटा साइंस आता है, एंड ही इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन वाज ऑलवेज गुड, बिकॉज मैंने इतनी डिबेटिंग करे है ना, तो एक्सटेम्पोज वगैरह में करता रहता था ऐसे रैंडमली। तो वो मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने उस चीज़ में करा, एंड दैट प्लेड इन माई बेनिफिट। ऐसे ही यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, कि मतलब आई हैव समथिंग अदर देन दिस ऑल्सो इन माई माइंड। वाइल आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द फौज, इफ फौज डज नॉट वर्क आउट फॉर मी, आई माइट डू समथिंग। बिकॉज यू नेवर नो, यू कैन आप बच जाओगे फौजी, और 3-10 साल बाद आप ये बोल रहे हो साला काम तो मिला नहीं कुछ ढंग का करने का, फौजी बन के क्या फ़ायदा है फिर, और 10 साल बाद आप अर्ली रिटायरमेंट मांग रहे होगे। ये भी हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर यू, सो यू नीड टू अप्रोच इट इन सच अ फैशन दैट आपको जो इंटरेस्ट है वो चीज़ तो आप ढूंढ के रखो पहले से। आप आज भी स्किल सीखोगे व्हेन यू गो टू फौज, ठीक है, फिर दिस यू ऑलरेडी हैव द स्किल, ठीक है, इवन आफ्टर completing for the skill is still there with you, है ना। maybe it needs some revision, maybe it needs some looking into, but it will still be there, है ना। विद्या आपसे कोई नहीं चुरा सकता, सब पैसा ले जाए कुछ भी ले जाए, आपसे विद्या नहीं चुरा सकता कोई, है ना। तो एक और स्टोरी मैं बताना चाहूँगा नीरज की। ठीक है, नीरज ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम इससे डरते हैं बंदे से, ठीक है, इसने वो कर रखा है, फाइन। इसने ऑलमोस्ट सारे, मतलब यू नेम इट, अग्निवीर से स्टार्ट करा, ठीक है, उसके तो 7-8 शायद पेपर निकाल रखे हैं इसमें, ठीक है, एंड ही इज़ बीन टू पॉसिबली ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वेयर इट ही इज़ आल्सो बीन पार्ट ऑफ CDS जर्नी का वो सुपर 100 बैच, ठीक है, अभी ऑनलाइन चलता है, राइट, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट CDS जर्नी, है ना, उसमें भी रहा है ये, ठीक है। अभी भी ना थोड़ा इसको, आई डोंट नो, इसको मेरे को लगता है ना, इज़ वेरी इनोसेंट एज अ पर्सन, ठीक है, वेरी नाइव येट, है ना, वेरी प्योर हार्टेड, डाउन अंडर, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन ही गोज टू द SSB, तो इसका ना मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसी की वजह से कुछ अटक रहा है। तो मैंने इसको ये एडवाइस करा, यू शुड स्टार्ट वर्किंग, राइट, ही इज ऑलरेडी गुड एट दिस एग्जाम थिंग, राइट। तो मेरा क्या मानना है कि भाई यू शुड गो इनटू द एजुकेशन बैकग्राउंड। सही बात है, हाँ। है ना। तू कुछ बोलना चाहेगा? मेरा ये है सर, SSB में मेरे को जब अल्टरनेटिव करियर का ऑप्शन आता है कि इफ़ नॉट आर्मी देन व्हाट, तो मेरा आंसर होता है कि सर मैं CAPF कर लूँगा, या मैं अदर SSC के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता हूँ तो मैं उस तरफ चला जाऊँगा। तो जब वो वहाँ भी हटा देते हैं कि चलो ये भी नहीं हुआ, तो फिर क्या, तो बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन नॉर्मल, मतलब ज़्यादा वो ठीक नहीं है। नहीं नॉर्मल तो सेम ही है मेरी, नहीं ऐसा मैथ्स ऑनर्स ही है ना तुम्हारी? हाँ, बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा यहाँ ऐसा है कि कॉलेज जाना नहीं पड़ता, ऐसा वाला। हाँ, तो क्या होता है? हाँ, मैंने अपनी मास्टर्स करी है बिना कॉलेज गए हुए, UK से कॉलेज करी है मैंने कोविड में। हाँ, देन मैं उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड में हाफ तक मैंने NDA के SSB दिए हैं पूरा। उसके बाद मैं मिडिल में आके फिर मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने CDS की तरफ स्टार्ट किया। पहली बार में मैंने फिर CDS निकाला,
एफकेट निकाला, कोस्ट गार्ड, ये इन में आ गया मैं। तो मेरे को एक कॉलेज एक्सपोजर नहीं है, और मेरा ये डिफेंस लाइन में प्रिपरेशन वाले में है। स्कूल में भी ये बोर्डिंग स्कूल में था, ऑल बॉयज स्कूल। तो तब तो फिर बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए यार तुम्हें तो। फिर तो तुमने हर तरह की चीज़ें करी हुई। हाँ वो तो टाइम पास वाले मतलब। हाँ, टाइम पास वाली चीज़ें हैं। हाँ तो देखो, एक तो पहली बात ये है कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ पे जब एसएसबी में जाओगे ना, वरना वो बाकी लोग जो 5 लोग और होंगे ना फ़ायदा उठा लेंगे। इनफैक्ट आपका जो फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग वाला, उस दिन तो मछली बाजार होता है यार। यस सर। फर्स्ट एसएसबी मैंने 2 बार एसएसबी दिया है। फर्स्ट एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट हुआ था, सेकंड में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट में स्क्रीन आउट हुआ था ना, सिर्फ इसलिए ही हुआ था मैं। और ये 12th की बात है, 12th के एंड की बात है ये। अब मैं स्क्रीन आउट इसीलिए हुआ था क्योंकि वो मछली बाजार में मेरे को नहीं खरीदना था, बेसिकली ये रीज़न था। सेकेंड टाइम जब मैं गया तो मैं ये बोला कि ये बोलेंगे तो इनसे तेज़ बोलूँगा, इस बार कोई और मेरे से ऊपर की आवाज़ नहीं होगी। वो तो खैर मतलब पॉइंट बीइंग कि आपको एक ऐसी पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी वहाँ पे कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप भोले बनोगे, नाइव बनोगे वहाँ पे उनके सामने, तो वो फिर यही सोचेंगे ना इसके तो कोई भी मज़े लेके चला जाएगा, इसका कोई भी फ़ायदा उठा लेगा। एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी ह्यूज जब वहाँ पे होती है। अगर मान लो आप कैंटीन समझ लो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सीएसडी कैंटीन संभालने की बात होती है। ठीक है, आप नहीं वो आप अपना नॉर्मल काम करोगे कैंटीन से। जो कोई स्मार्ट बंदा होएगा ना, वो क्या करेगा, उसको जो चीज़ चाहिए ना वो कैंटीन में प्रोक्योर करवा लेगा। ये अगर उसका सुपीरियर मैं हूँ तो मैं देख के बोलूँगा ये स्मार्ट है, इसने अपना काम तो निकलवा लिया, खुद ही टेस्ट करके खुद ही मना कर दिया और एक रख लिया अपने पास। ठीक है, और वो दूसरा वाला वो बस डिलीजेंटली काम करे जा रहा है, उसको मजदूर कंसिडर कर जाएगा। इसका मैं बताता हूँ, इसके बैच में भी जो बाकी 3 थे ना, तो ये है इसके बैच में थे 3 जाट रेजिमेंट हमारी। ठीक है, तो 3 है वैसे, उसमें एक जाट नहीं है। ठीक है, राजपूत है वो, बट देन हम नाम ही रखा हुआ है 3 जाट। ठीक है, तो क्या होता था ना, वो तो आपस में हंसी मजाक करते ही हैं। ठीक है, उनका मन ही वही होता है। तो क्लास में तो मेरे मज़े ले लिया करते थे। ठीक है, तो वो सबके मज़े लेते हैं, राइट। इसके मज़े लेते थे ना, इसको लग जाता मन में बुरा। ठीक है, कि और बुरा लग जाता था और ये मन में ही रखता था। ठीक है, कि बुरा मान जाएगा और उनको ऐसे मुंह फुला के बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, और मैं बात नहीं करूंगा तेरे से। सॉर्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। मेरे को क्या नीड फील हुई ना इस चीज़ में, इसकी वजह से कि भाई मतलब ही नीड्स टू गो इनटू अ जॉब जहाँ पे ये सारा चीज़ें ना रियल टाइम हो रही हैं। हाँ, थोड़ा धक्का लाने की ज़रूरत है। हाँ, कंफर्ट से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। फौज छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो पाएगा कंफर्ट जोन में रह के। मतलब यू विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल इन दैट जोन बट यू विल नेवर बी हैप्पी इन दैट जोन। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू आफ्टर दिस, अभी क्लास के बाद में? तो मैं जाके जिम वगैरह नहीं, फिर अभी जैसे एफकेट आ रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी देर पड़ता है एफकेट के लिए? हाँ, यहाँ जाके 3-4 घंटे, और फिर सीएपीएफ का भी है। तो तुम अभी क्लास कितनी देर की होती है? यार ये मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6। तो 9 to 6 क्लास करने के बाद तुम 4 घंटे और दे रहे हो घर जाके, और तुम जिम भी कर रहे हो। सोते हो तुम? बिकॉज ये तो मतलब थोड़ा सा 9 to 6 इज योर 9 hours plus 4 hours 13 plus 1.5 hour भी अगर मान लो 14.5 hours तुम दिन में। क्योंकि सर मैं मतलब मेरा घर मथुरा में है, तो यहाँ मैं मुखर्जी नगर में हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो स्टूडेंट एरिया, तो मेरा पूरे दिन का काम ही यही है। मेरे पे और कोई लोड है नहीं उस चीज़ का। अगर मतलब मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि वहाँ तू पढ़ रहा है तो पढ़ बस, और कोई दिक्कत है नहीं तेरे को खुद के शरीर का। हाँ दोस्त हैं हॉस्टल में। हाँ, या घर पे मथुरा नहीं कह रहा मैं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे है, उनका टाइम पास करने के कुछ करते हो? हाँ, वो तो जाते हैं जिम साथ, चाय वाय पीने जाते हैं हम। हाँ, टाइम स्पेंड पूरा करते हैं। बट फिर मैं अभी की बता रहा हूँ, ये अभी सिचुएशन ये कि एग्ज़ाम पास आ रहा है, वरना 3-4 महीने से तो पूरा खत्म था। एंजॉय के एग्ज़ाम पास आ रहा है, वरना 3-4 महीने से तो पूरा खत्म था, एंजॉय था। एग्ज़ाम आता है धीरे धीरे, तो 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर। वो तो खैर मैं समझता हूँ, बट ऐसे कोई कमी नहीं है जॉब्स की, पता है। एक तो आप स्पेशली अगर आप मतलब अगर मैं आईटी की बात करूँ तो डज नॉट मैटर आपकी डिग्री है।
वो आईआईटी से है और आप ओपन से हो, तो आप अगर आपके अंदर स्किल्स आते हैं तो आप उसको हरा सकते हो उस जॉब में, आप ले सकते हो उससे जॉब। लेकिन अगर आपके और उसके बराबर है तो एनी डे वो चूज़ होगा। तो यू हैव टू बी मोर हंग्री देन हिम। और वो एक्चुअली में उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी ना, बिकॉज कॉलेज से गया है वो और आईआईटी का नाम है एक। तो आपको बस एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा उससे। बट मतलब अगर आप इतना एफर्ट 15 दिन पहले डाल रहे हो तो 2 महीने पहले भी डाल देंगे, 2 महीने तक करो फिर इस एफर्ट को, और कुछ और भी निकाल के देखो। कहीं धक्के खाओ थोड़े, ठीक है, कहीं थोड़े धक्के खाओ कि किसी से गाली खाओ, क्योंकि फ़ौज में बहुत गाली सुनने को मिलेगी अगर फ़ौज जाना है, बहुत गाली सुनने मिलेगी। देयर इज़ एंडलेस, मतलब वो वर्ड है ना ब्लडी, वो ये लोग मतलब नाम से ज़्यादा वो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। मेरे डैड के हर दूसरे सेंटेंस में वो निकलता है ब्लडी, मतलब मज़ा नहीं कर रहा। ये फौज में बहुत गालियाँ होती है, स्पेशली जो आपका ब्रीफिंग रूम होता है जिसके अंदर आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी कुछ काम करने जा रहे हो उससे पहले जो होता है उसके अंदर इस ऐसे ही रूम होता है, एक वाइट बोर्ड लगा होता है ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे सीईओ खड़े होकर गाली देता है और पीछे 15 लोग वहाँ पे गाली सुन रहे होते हैं, और इस रूम से बाहर निकलती सारे एविएटर लगा के बाहर निकलते हैं। इस रूम के अंदर किसी की इज्जत नहीं है, सब बराबर है। सीईओ और फ्लाइट कमांडो को छोड़ी, जो सीनियर है वो सीनियर है। इस रूम के अंदर सब बाकी सब बराबर है। उनमें कोई ऊपर नीचे होएगा ना, 6 महीने भी सीनियर या 1 साल भी सीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दूसरे को गाली देंगे वहाँ पे। पर इस रूम के बाहर वो उसी चौड़ में घूमेंगे मैं फौजी हूँ। बट वो उस टाइम पीरियड में आप सब सुनोगे, उस तरह की चीज़ें सुनोगे आप, गंदी गंदी चीज़ें सुनने को पड़ती है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल इन दैट। यू हैव एटलीस्ट लाइक एवरी ऑफिसर हैज एटलीस्ट 100 men अंडर देम, एटलीस्ट 100। आर्मी में जाओगे तो और बढ़ जाता है नंबर, एयरफोर्स में तो फिर भी थोड़े कम है, नेवी में थोड़े से और कम है, बट आर्मी में तो बहुत बड़ा नंबर होता है। यू कैन लीड पीपल इफ़ यू नो कि वो तुम्हारे बारे में कुछ पीछे से बात कर रहे हैं और तुम्हें वो अफेक्ट कर जाएगा, तुम लीड कैसे करोगे? और दुनिया तो बात करेगी, वो दुनिया का काम है बात करना ना, तो वो तो करेंगे। बट बाकी हाँ, एसएसबी के अंदर आपको थोड़ी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है अंदर से कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा, मेरा होएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कई बार चला गया कि ऑफिसर को ही बोल दिया कुछ, इंटरव्यू में ऑफिसर को ही कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। बट अपने जो पेयर्स हैं उनके बीच में यू शुड फील कॉन्फिडेंट, यस कि बात कर सकता हो, कुछ निकालो, हॉबीज़ करने के लिए, लड़ाई झगड़ा ही कर लो किसी से, धक्के वक्के खाओगे ना हमसे, अपने आप हो जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को फोर्स करो टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इफ़ योर कंफर्ट जोन इज स्टडिंग 4 hours 5 hours एवरी डे, तो यू फोर्स योरसेल्फ टू रीड समथिंग डिफरेंट, कुछ और पढ़ूंगा, आई लर्न मोर अबाउट सम अदर इंडस्ट्री कि वो कैसे चल रही है। जैसे न्यूज़ तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ता है बिकॉज यू हैव टू गो फॉर एसएसबी। रीड अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ डू दे वर्क, रीड अबाउट हाउ जेफ बेजोस स्टार्टेड अमेजोन, उसने अमेजोन कैसे बनाया था। देयर इज़ अ होल बुक ऑन जेफ बेजोस जिसके अंदर वो अपने शेयर होल्डर लेटर्स दिखाता है कि ये नहीं सबके लिए हेल्पफुल है। देयर इज़ अ होल बुक बाय जेफ बेजोस जिसके अंदर वो अपने शेयर होल्डर लेटर्स दिखाता है कि उसने कैसे लोगों को कन्विंस किया टू इन्वेस्ट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टे इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड। वो सब रीड करो। दिखाना कौन सी बुक है बताइए मेरे को। हाँ, मैं लिंक भेजता हूँ। Then we have विजय also, ठीक है। तो विजय सबसे ज़्यादा उबासी मार रहा है, मैंने ये तो नोटिस किया। भाई इसको नहीं देखा, एक तो नहीं मारी है, ये तो सो गया था, ये इसको तो ऐसे ये भी हाँ, ये भी सो ऐसे गया करना पड़ा। इसको बीच में अपनी आंखें 3 बार ऐसे करनी पड़ी थी। If someone wants to do a course like you, which path should we follow? First of all, you have to understand whether the course is something that you would be interested in or not. Before you go into doing a course, Udemy and Coursera पे there are plenty of free materials. Plenty of free materials there is. मतलब even on YouTube you go, YouTube पे जाके बस टाइप कर दो learn data science from scratch. Figure out what is data science first of all. What does data science actually do? This is just one thing. I am no longer working as a proper data scientist. I used to do that. I am working now as a consultant, a senior consultant. So what I'm doing is I'm leading people into doing their jobs. So now I bring good projects. वो eventually आता है आपके पास. If you want to do that early, go into MBA and then get into a job. But I don't recommend that
anymore. MBA I don't recommend to people anymore. I'd rather suggest कि just work through the ranks and then become that. But if you want to do anything for that matter, not just data science, even what Simran is doing, marketing. My brother has his agency in marketing. Anything that you want to do, बस you just have to Google, ChatGPT से पूछ लोगे ना, ये same answer देगा वो कि क्या करना है. पहले figure out if you want to actually do that or not. To understand that, you can just go to any free course, ऐसे ही पढ़ लो उसे. Just go through it कि interesting लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे. Initially सब कुछ interesting नहीं लगेगा, कुछ भी interesting नहीं लगेगा शुरू में, but you have to give it a little time to make it interesting for yourself. And certain things might just click. जैसे जो ये कोडिंग करता है सुशांत, जो टिपिकल कोडिंग करता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो मेरे को रियलाइज़ हुआ है एक पॉइंट के बाद में कि यार ये बहुत ज़्यादा लिखने वाला काम है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है मेरे लिए, तो मुझे ये नहीं करना. क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सिंस दैट हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई वांट टू यूज़ इट, डोंट कीप इट ऑन द साइडलाइंस. तो ऐसा कोडिंग तो सिर्फ कोडिंग नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ करना है, उसको छोड़ के भी कुछ और होना चाहिए टास्क में. तो डेटा साइंस की मेंटो पिक्चर जिसमें मैं काम करूँगा और दिखाऊंगा कि मैंने करा क्या, किसी से बात करूँगा. फिर कंसल्टेंसी की मेंटो पिक्चर. अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ, 5 साल हो गए सेम ऑर्गेनाइजेशन में, इस काम से बोर हो चुका हूँ, मेरी लर्निंग सैचुरेट हो गई. आई एम लुकिंग फॉर अ डिफरेंट जॉब नाउ. मैन आई हैव अ फ्यू ऑफर्स इन हैंड एंड आई एम टेलिंग यू, पे इज समथिंग दैट यू कंट्रोल. ऑर्गेनाइजेशन में हाँ, जस्ट फॉर रेफरेंस, माई करंट सैलरी इज 25 LPA, ठीक है, एंड आई बीन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. And you started off at I started at 5, but 5 LPA. हाँ 5 LPA. You told me you got into an internship and it was paying you 10K per वो month. तो हाँ, मतलब I got an internship in this organization. I started at 5. इससे पहले I was getting वो एक internship थी, उसमें 12,300 रुपये दे रहे थे. मुझे आज तक याद है, वो 300 रुपये छुपते थे मेरे को कि या तो रख लो या मत दो, ये कैसी चीज़ है, 300 रुपये कौन दे रहा है. तो वो 12,300 शुरू हुआ था एंड 1.5 months into, वो scam था मेरे साथ. Basically, I wanted to shift out of Allahabad where my dad was posted. So I wanted to shift. I took the first opportunity that I could grab, internship of a business analyst only. They were making me do business development. I didn't want to do that. तो लेकिन उसमें भी you have to find ways to make do things. तो मैं वहाँ पे था 1 महीना. They gave me LinkedIn का premium access and they used to get me in touch with business development कराया था. Business development में you speak to CEOs etc. CXOs level पे लोगों से बात करते हो. And you get them to talk to you, have a meeting with you, and then we pitch our product. There'll be someone who will pitch the product, and then they'll decide whether or not. That was a very bad organization. It still exists, by the way. iSource करके नाम है उसका. A very bad organization. मेरे को business analyst से business development करवा रहे थे, and मैंने बोला कि तुम मुझसे मेरा फ़ायदा उठाए, मैं भी तुम्हारा उठाऊंगा. LinkedIn प्रीमियम दिया उन्होंने मेरे को और बोला कि इन लोगों से बात करो. मैंने क्या करा उस टाइम पीरियड में, मेरा कोर्स वो स्टिल ऑन गोइंग उस टाइम पे, अपग्रेड वाला जो कोर्स था ना मेरा, दैट वाज स्टिल ऑन गोइंग. मैंने वहाँ से सारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स निकल दिए लिंक्डइन से. उनके लिंक्डइन से अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से नंबर निकलवा लिए, उनको पिंग करना शुरू कर दिया, उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया कि भाई अपने प्लेसमेंट नहीं भेजी मेरे को, एक भी लिस्टिंग नहीं भेजी मेरे को. 1 महीने मैंने इंटर्नशिप करी, आधे महीने 1 महीने के बाद 15 दिन और करा था. 15 days बाद में I got number of almost all of the placement coordinators there, and everyone had one mail from me that I have not received any placement opportunity. And they started thinking कि मेरा शायद कोर्स हो गया होगा तभी मांग रहे हैं. मेरा कोर्स 3 महीने हुआ था उस टाइम, 3 या 4 महीने कोर्स. I was into the course. उन्होंने मेरे को भेजनी शुरू कर दी. I left the internship. उन्होंने जो प्लेसमेंट्स भेजी ना, उसी के थ्रू जो लिस्टिंग्स भेजी मेरे को, मैंने उन लिस्टिंग पे अप्लाई करना शुरू करा, ये बोल के कि मुझे अपग्रेड ने रेफर करा और मैंने जॉब निकाल ली. मेरे साथ में जो बाकी लोग थे ना पीयर्स, वो 1 साल के बाद भी उनको प्लेसमेंट नहीं मिली. दे टुक अ लॉन्गर टाइम, बट मैंने पहले 3 से 4 महीने के अंदर अपने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिया, बिकॉज मैंने बोला फ़ायदा उठाना है मेरे को इनका. और वो 15 दिन की सैलरी मैंने उनको, मतलब वो उन्होंने रखी है मेरी आज तक. मैं रख लो तुम 6,150 रुपये. ठीक है. हाँ, अब उसके बारे में हाँ, विजय. विजय, हाँ विजय. पता है एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट्स, ठीक है. सो एटलीस्ट गुड मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर मोस्टली ग्रेजुएट्स, राइट. सो अभी इस वाले फेज में ना सबको ही मतलब कुछ ना कुछ ये एम्प्लॉयमेंट वाला ना श्योरिटी, क्लैरिटी नहीं रहता, क्लाउडीनेस थोड़ा फील होता है, डिसीजन मेकिंग वो नहीं रहती है. तो ये ऑल्सो कम्स, ये ऑल्सो इनफैक्ट इन द प्रीवियस इंटरव्यू इसका ये सीन सॉर्टेड नहीं था ना, अभी तो थोड़ा इसको फिर भी कन्विक्शन आया.
he has done B.Ed, right? तो B.Ed from इसका मतलब आई थिंक रेगुलर कोर्स है ना तेरा, है रेगुलर बट जाता नहीं है, ठीक है। तो अब उसके वजह से क्या है कि मतलब एक इसको ना जब बैठते हैं ना तो अंदर से एक वो फील नहीं होता, कॉन्फिडेंस है ना, बोलते हुए भी उस बात को कन्विक्शन नहीं आता है ना। बट एनी वे वी वर्कड ऑन द इंटरव्यू पार्ट का और डेप्थ में काम किया था तो उसको थोड़ा सा क्लैरिटी आया। बट आई मीन आई एम नॉट श्योर, तू कुछ पूछना चाहेगा इस पर? यू वांट? नहीं, ठीक है, इसको मिल गए हैं, नहीं इसको मिल गए हैं। आई फील गुड दैट इज फाउंड हिज ग्रूव, है ना, क्योंकि इस वाले एसएसबी में फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होके गया था, है ना। अदरवाइज इट वाज हॉन्टिंग हिम इन द प्रीवियस एसएसबी, है ना। तो ये हुआ था एंड आई थिंक बीएड और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू योर नंबर्स 3 years डाउन द लाइन, ठीक है। इनफैक्ट जस्ट आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट पूछा जाता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th के में बोलते थे, वो स्कूल में बोलते थे 10th के नंबर अच्छे लाओ, फिर 12th के अच्छे लाओ, फिर अंडरग्रेड अच्छे लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अंडरग्रेड जीपीए जो है वो 5 है, 5.5 ऐसे कुछ है मेरे। आई एम नॉट इवन फर्स्ट डिवीजन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। अगर आप ओपन से करके 8 ला रहे हो और आप फुल टाइम करके 5.5 ला रहे हो, तो मैं तो ओपन वाले को ही कंसिडर करूँगा, अगर कंसिडर करना है तो। वो डज नॉट मैटर, what matters is that you have a skill that somebody else does not, or you have a skill that everyone else has but they don't have it as good as you. वही मैटर करता है बस। तेरा क्या सीन है? मेरा क्या सीन है, अभी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरी चल रही है। अच्छा, चल ही रही है अभी तेरे? ओके सर मेरे को एक हाँ हाँ। Sir, I have some skills. Like I have worked in training and placement cell in college in second year. I have cracked one company. I brought C-Vent in my college for my seniors, for like third year students. And I am good at content writing. And I have always organized event right from my childhood. So, what will you suggest should I pursue? Like other than this, other than like I have my conviction in Forge. But other than this. Having a conviction for is very important. That is the basic necessity that you have to for you to be interested in going to SSB. उसके बाद जो तुम जॉब कर रहे हो, the things that you have done, these are life skills. These are not job skills. Yeah. ठीक है, these are life skills that will help you in throughout life. It can be any particular field in job. Data science में भी you will have people to lead. Your organization skills can be useful there. If you go into policy making, it will be useful. ठीक है, there are a lot of jobs. There is a organization called CEW. हाँ, CEW, उसमें आपको पॉलिसी मेकिंग की बहुत सारी जॉब्स है। आपने वो नाम सुना होगा ना, टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो टिस से लोग कहाँ प्लेस होते हैं? गवर्नमेंट वाले जॉब्स में ना, सेक्टर में इधर। तो देन यू राइट पॉलिसीज, यू मेक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स विच अफेक्ट हाउ द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस ऑन सर्टन थिंग्स। दैट इज़ वन फील्ड। यू कैन गो इनटू एनी फील्ड फॉर दैट मैटर। मतलब माई ब्रदर हैड डन अंडरग्रेड इन बीटेक फ्रॉम IPU यूनिवर्सिटी से ही कर रहा था, फ्रॉम GGS IPU। ये स्कॉलर थ्रू आउट द लाइफ, GGS है। हाँ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम IPU बारे में। उसने मेन कैंपस से करा है, ठीक है। सेकेंड ईयर में ही इज लाइक इंजीनियरिंग तो मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं करना कोडिंग। कंप्यूटर साइंस कर रहा था, कोडिंग नहीं करना। थर्ड ईयर तक ही टुक एन इंटर्नशिप इन मार्केटिंग, ठीक है। फोर्थ ईयर तक ही गॉट फुल टाइम इन दैट इंटर्नशिप, एंड उसके बाद मैं स्टार्ट कंटिन्यूइंग। तो ही हैज गॉट सेम एक्सपीरियंस दैट आई हैव, बीइंग 3.5 years born later, क्योंकि उसने सेकंड ईयर में शुरू कर दिया ना अपना काम करना। तो ही फाउंड दैट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड। मैं सजेस्ट कर दूंगा 100 चीज़ें, बट यू विल हैव टू स्टिल गो एंड रिसर्च अबाउट दैट बिफोर आई इन्फ्लुएंस यू। इन्फ्लुएंस योरसेल्फ थ्रू गूगल, लर्न अबाउट दोज थिंग्स। देख, लिसन, तू ना पहले व्हाट आई रिकमेंड इज देयर वाज दिस वन गाय इन माय फ्रेंड सर्कल, ठीक है। वाइल वी वर जस्ट जंपिंग ऑन टू प्लेसमेंट्स, ठीक है, कि भाई मतलब जस्ट बिकॉज कि घर से प्रेशर है तो प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। व्हाट आई डिड इज आई जंप्ड ऑन टू वन जॉब, ठीक है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आई हैव टू अर्न। एंड द लास्ट जॉब आई लेफ्ट विद इन 1 month, ठीक है। सो आई एम नाउ गोइंग टू डू एटलीस्ट 1 year, otherwise it will reflect poorly on my CV and resume, ठीक है। On the other hand, there was this one guy in my college, right? So what he did is he shortlisted multiple companies, ठीक है, and then he applied at all of them together, ठीक है। वो क्या करता ना, उसका एक पॉलिसी होता था, जाता था 1 हफ्ते काम करूँगा बस एक कंपनी में,
ठीक है, जाके देखूंगा अलग अलग जगह पे। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, ठीक है, तो उसने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिए, ठीक है, और एंट्री लेवल जॉब्स देख रहा था सब में, ठीक है। तो वो एक हफ्ते जाके ना देखता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या हैं, वर्क कल्चर कैसा है, ठीक है, एंड इज डज इट हैव अ ग्रोथ लैडर, ठीक है। एज लॉन्ग एज ही वाज गेटिंग दैट, ठीक है। सो मैं उस कंपनी को इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे को लगता है टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ठीक है, बट ही वॉज एबल टू टॉलरेट दैट बिकॉज ही कुड सी अ करियर अहेड, ठीक है। टुडे इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजेंट, IPA कहते हैं कुछ समथिंग, है ना। सो पेटेंट एजेंट होता है, सॉरी पेटेंट एजेंट होता है, ठीक है। तो ही इज डन दैट सर्टिफिकेशन। व्हाट इज द पॉइंट हियर? ट्राई एट मल्टीपल प्लेसेस, लाइक ही सेड, हसल करना ज़रूरी है, ठीक है, फाइंड स्ट्रगल, राइट। एंड अब तेरे को ना स्टार्ट इनिशियली तूने मान लिया एक हफ्ता करके ना तेरे को एक समझ में आया ये डोमेन मेरे को चमका, ठीक है। अब उस डोमेन में ये देख रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, एंड देन लुक एट योर स्किल सेट, जो तू लाइफ स्किल्स है ना, क्या वो यूटिलाइज हो रही हैं फुली, क्योंकि डोमेन्स में ना स्पेशलाइजेशन होती हैं फिर, ठीक है। अब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में घुसा तो उसमें कोई ऐसा रोल होगा जिसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा, किसी में ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होगा, यू अंडरस्टैंड। इट ऑल स्टार्ट्स विद एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग थ्रू फेलियर, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। सो ऐसे करके एंड देन लाइक यू नो मे बी यूल फाइंड योर ग्रूव, है ना। और उसके बाद फिर जैसे इसने बोला कि मतलब ही हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन, ठीक है, ही स्टिल क्वेंचिंग दैट, राइट। सो दैट रियली सेटिस्फाइड। सो अब तो एक बार को जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आई कुडंट गो टू फौज, फाइन, बट आई हैव अ नैक फॉर एडवेंचर, ठीक है, कॉम्बैट। तो मैंने फिर वो करा लाइफ में, है ना, मैंने MMA सीखा, भले ही मैंने पैर तुड़वा लिया वो अलग बात है, फिर उसके बाद और भी इंजरीज हो गई वो अलग बात है, ठीक है, बट देन हाँ ठीक है भाई, मैं मतलब एक जो चाइल्डहुड का डिज़ायर है एटलीस्ट दैट इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग, है ना। मैं आई वोंट डाई विद अ रिग्रेट, बट आई होप यू गेट द पॉइंट, है ना। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज एक्सपेरिमेंट, फिर टेक अ डिसीजन ऑन दैट बेसिस, क्योंकि आप देखो वो डिसीजन कई बार लोग क्या करते हैं ना, डिसीजन ले लेते हैं देन स्पेंड देयर लाइफ थिंकिंग वेदर आई टुक द राइट डिसीजन और नॉट, एंड देन देर आर पीपल हु टेक द डिसीजन एंड स्पेंड देयर एफर्ट प्रूविंग दैट इट वॉज द राइट डिसीजन, प्रूविंग टू देमसेल्फ, ठीक है, नॉट टू एनीवन एल्स, राइट। तो जो बंदा है ना उसको कन्विक्शन नहीं आएगा जो बार बार सोच रहा है मैं सही डिसीजन लिया है गलत डिसीजन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कंसिडर कर लो सारे कि आपका कन्विक्शन हो कि भाई ये मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ये मेरे को चमका, मैं इसी में आया, ठीक है। मैं उसमें जाता तो मैं शायद खुश नहीं रहता, फाइन। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन देखो एंड बैलेंस योर लाइफ, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है ना। अब देखो काम तो करा लिया मैं, कुछ अब खिलाने पिलाने का भी वो करते हैं ना। कौन पार्टी देगा आज? मैं दूंगा यार, बेशरम है यार बिल्कुल यार, ये तो अच्छी बात है यार।